So good afternoon. On behalf of Dr. Girilal Gupta Institute of Public Health and Public Affairs and Dr. Shankar Dayal Sharma Institute of Democracy, I extend a warm welcome to one and all who have connected with us for today's interactive webinar on gender equality and health under the aegis of Mission Shakti Phase 3. With this, I take the honor to extend warm welcome to the patron, Professor Alok Kumar Rai, Honorable Vice Chancellor of University of Lucknow, who is always like a solid rock behind us. Mission Shakti convener, Professor Madhurima Lal. She'll be joining soon. There is some technical glitch with her and therefore she is unable to join, but she'll be joining soon. My co-host, Dr. Varun Chachar. He is coordinator of Dr. Shankar Dayal Sharma Institute of Democracy. Dr. Anjali, faculty member, colleagues, friends, students of University of Lucknow, we welcome you all. Our speaker of the day, Mrs. Vandana Mishra. We welcome you, ma'am. It's my proud privilege and the opportune moment to introduce the speaker of the day, Mrs. Vandana Mishra. She is a decorated police officer, commissioned as Additional Superintendent of Police and currently posted in Agra in capacity of Deputy Commandant of 15th Battalion PAC. She is a 2003 batch Provincial Police Services officer and has served at various stations of Uttar Pradesh in different capacities during her course of service. To name a few of them are Bareilly, Ghaziabad, Bulandshahr, Meerut and Agra. She has rendered her services in law enforcement, crime control and police training school. She has also supervised family counseling center where her counseling skills led many marital conflict cases to a happy ending. Officer Mishra is a high-spirited and dauntless lady of personnel with impeccable moral and social values. She is a firm believer of gender equality and advocates the equal division of rights as well as duties amongst both male and female children of the family. Most importantly, she has been a bright student throughout her academic life and a bona fide alumna of University of Lucknow. With immense pleasure, I would now like to invite and hand over the screen and space to Officer Vandana Mishra. Ma'am, now the stage is yours. नमस्कार। थोड़ा पीछे सुनने में दिक्कत आई थी, शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू था, तो मैं shall I start? Yeah. Am I audible? You are audible और वरना लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो हमारे स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं and they will be posting the questions as well as asking at the end. तो ये लोग बाद में आपसे there is some gap. Communication is not continuous. Okay, I'm telling that the program is on live streaming also. So the students are on live streaming thing. तो यहाँ पर screen पे आपको कम लोग नजर आएंगे, but don't worry, there is whole gang. Okay, so no, all are here. Yeah. Yes. Thank you, Shaili ji. Thank you, all the esteemed members participating in this webinar. और जैसा शैली ने कहा कि जो ये हम लोग कर रहे हैं वेबिनार और मेरे को जिस तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो एवरी टाइम आई फील ऑनर्ड। और मुझे एक व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे जब वो यूनिवर्सिटी का समय याद आता था कि मैं और शैली एक साथ हॉस्टल में थे, और शैली तो बहुत ज्यादा जो हम आपकी प्रोफेसर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग रही हैं और उनसे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता था। तो आज हम दोनों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक ऐसा वेबिनार जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और ये जो मिशन शक्ति हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमारी जिम्मेदारी इस पद पर रहते हुए ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग एक कहीं कड़ी है। आज की जो जनरेशन है, जो लड़कियां आगे बढ़ करके स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी में आ रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में
अपनी पहचान बनाने के लिए एक जद्दोजहद उनकी चल रही है, एक प्रयास चल रहा है। हम लोग एक उस दौर से निकल कर आए हैं जब लड़कियों का यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुआ था। उनसे पहले वाली जनरेशन यानी हमारी मदर्स वाली जो जनरेशन थी, हमारी चाची मामी मौसी वाली जनरेशन थी, उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था कॉलेज जाना। हमारे टाइम तक ये चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, पर अब जो शिक्षा को लेकर, जो नारी सशक्तिकरण को लेकर के एक मूवमेंट सा एक नए सिरे से शुरू हुआ है, जिसमें सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। और नारी अधिकारों को लेकर के जो पिछले 150 सालों में प्रयास हुए हैं, उसमें उसको एक नए लेवल पर ले जाने का ये प्रयास है, जिसमें इन सब चीजों को नॉर्मलाइज कराना कि महिलाएं बराबर केवल किसी सेमिनार में कहने के लिए नहीं है, किसी निबंध में कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में वे ऑफ लाइफ होना, कि हमारे दैनिक जीवन में ये बात आई ना कि पुरुष थोड़ा बेटर हैं या महिलाओं की कहीं उनको नीचा दिखाया जाए या उनकी सुरक्षा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी विचार विमर्श की आवश्यकता है, एक्शन की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखकर जो ये मिशन शक्ति है, तो मैं मुख्य बिंदु पर आऊंगी, जिसमें यह है कि एक मुद्दा ये है कि लैंगिक समानता और स्वास्थ्य। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे 1-2 जनरेशन ले जाना चाहूंगी, 2-3 जनरेशन जो 50s की थी, 60s की थी, जिसमें कि ये होता था कि महिलाओं की छोटी, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे बहुत बुजुर्ग महिलाएं हों, उनके लिए उनके डाइटरी जो नीड्स हैं खान पान की, उन पर क्या वो है फोकस रहता था। दूसरा, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के कितनी जागरूकता थी, कितना उनका ध्यान रखा जाता था। और तीसरा, ये आज क्या है और कानून कहाँ पर ऐसा है जो कि हमको इसमें सपोर्ट करता है। इसमें 3 जैसे पूर्व में होता था कि अगर ये माना जाता था कि मनुष्य जो आदमी है वो ब्रेड अर्नर है, वो बाहर जाते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके शरीर का ध्यान, उनका स्वास्थ्य का ध्यान माँ से लेके, दादी से लेके, बुआ से लेके, मौसी बहन सब रखती थी। और घर के पुरुषों को भोजन पहले खिलाना, क्योंकि वो बाहर काम करने जाते थे, बाद लौट के मेहनत करके आते थे। एक परंपरा थी, एक संस्कार था कि ये पुरुष हैं, ये वैसे भी जो परिवार है उसके नंबर 1 सदस्य हैं। महिलाओं का हिस्सा बाद में आता था। पहले घर में पिता है, दादा हैं, उसके बाद ताऊ हैं, चाचा हैं, फिर लड़के हैं घर के, उसके बाद जाके घर की दादी का नंबर, चाची का नंबर, और सबसे बाद में घर की बहुओं का नंबर आता है कि खाना बनेगा, भोजन बनेगा। अगर अच्छा भोजन बना है पर कम मात्रा में है तो पहले घर के जो ब्रेड अर्नर्स हैं उनको दिया जाएगा। बच्चे हैं छोटे लड़के, उसमें भी भेद होता था कि लड़कों को दूध ज्यादा मिले। आज भी गांव में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि लड़कों को दूध दही मिलना चाहिए। गर्भवती महिला है, बच्चे अगर उसका पहला बच्चा है, पता नहीं है लड़का है लड़की है, तो उस समय उसकी डाइटरी नीड्स का ध्यान रखा जाता है। अदरवाइज उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसके भोजन की क्या है। मैं इसमें शॉर्ट में मुझे उम्मीद है कि जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, हो सकता है आज की जनरेशन इससे रिलेट ना कर पा रही हो, पर हम जिस जनरेशन के हैं, वहां गली मोहल्लों में जहां हम लोग रहते थे, पड़ोस में हमारे, हम लोग गांव जाते थे, इवन जो हमारी परदादी नानी जिन लोगों ने देखा है, वो कहती थी अरे लड़कियों को क्या जरूरत है, मोटी हो जाएंगी, शादी नहीं होगी। तो लड़कियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के बड़े अजीब से मानक थे, बड़ी अजीब सी किंवदंतियां और मान्यताएं थी। और एक जो हमारे यहाँ पुरुष और महिला के बीच में जो गैप का एक सबसे बड़ा जो मौका होता था, वो होता था शादी विवाह, कि जब लड़की शादी होकर के जा रही है, जब उसको देखना होता है तो होता है कि लड़की दुबली पतली सुंदर अच्छी होनी चाहिए। और मैंने अपने परिवारों में देखा, जब शादी होके बहू आती थी, उसके 2 महीने बाद एक सोच चलती थी कि नहीं नहीं हमको बहू मोटी चाहिए, अच्छी लगती है, हमारे यहाँ तो सब खाते पीते हैं। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को ये दिखाना कि लड़की जिस घर से आई है उसके यहाँ खान पान का स्तर अच्छा नहीं था, दुबली पतली थी, हमारे यहाँ आकर के वो खा पी करके मोटी हो गई और हमको मोटे ताजे लोग पसंद है। ये मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने अपने खानदान में देखा कि इस तरह की बात होती थी। तो मेरी बहस हो जाती थी मेरी ताइयों चाचियों से
कि ताई आप कहते हो कि हमें मोटी बहुएं पसंद है, आप ये कहीं शो करना चाहते हो कि आप ज्यादा ऊंचे खानदान के हो, आपके यहाँ ज्यादा खान पान का स्तर अच्छा है, जो चाची या भाभी आई हैं उनके घर का अच्छा नहीं, तब दुबली पतली थी अब मोटी हो गई। तो लैंगिक समानता स्वास्थ्य में ये जो गहरे बैठी जड़ें हैं मानसिक तौर पे कि लड़के बाहर जाते हैं, घर के कमाने वाले हैं, इनके स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, लैंगिक समानता में एक ये भी इशू आता है कि हो सकता है मैं गलत हूं कि जब हमारे यहाँ जो पैटर्न बना हुआ है शादी का, इसका एक बहुत जड़ पे अगर आप जाके देखेंगे, जब कोई अपनी पुत्री और बहन की बात अलग हो जाती है, पर जब कोई महिला एज ए बाहर से आती है बहू बन करके, भाभी बन करके, तो कहीं ना कहीं ये सोच है कि दैट इज रिप्लेसेबल, कि हमारे यहाँ पुनर्विवाह की मान्यता नहीं है। अगर महिला का स्वास्थ्य खराब है गर्भवती होते हुए या अदरवाइज, तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है कि ये नहीं रहेगी तो कोई दूसरी बहू आ जाएगी, वो शी इज रिप्लेसेबल। ये कहीं सोच गहरी है, थी, अब नहीं है, या ये एक जो है अलग अध्याय का रिसर्च का विषय हो सकता है। पर हमारी जो जनरेशन जिसने गांव देहात में भी जाकर के परिवार में रहे हैं, अभी भी हम देखते हैं जहां पर हमारे साथ वर्किंग क्लास जो 4th क्लास है, वो जिस समाज से आता है, हमारे घर में जो काम वाली आती है कि हमको खाना नहीं देती है सास, हम कमा के ले जाते हैं तो हमारा पैसा सारा रख लेती हैं और बच्चों को देती हैं। मैं चाहती हूँ मेरे 3 बच्चे पढ़े, तो मेरी बेटी के लिए कह देती है कि इसको पढ़ा के क्या होगा, बेटे को पढ़ाने की बात करते हैं। यही चीज स्वास्थ्य के स्तर पर भी लागू होती है कि हमारे घर की जो महिला सदस्य हैं उनके लिए एज ए माँ, एज ए चाची, एज ए पिता जब हम बात करते हैं, तो आज का जो सिनेरियो, जो डॉक्टर्स के बच्चे हैं, जो हमारा मध्यम क्लास है, मेरा कहना है, जो टीचर्स के बच्चे हैं, जो अवेयर हैं, जिनके लिए सभी बराबर हैं, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे फिर कल आने वाली बहू हो, एक अवेयरनेस है। पर अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि महिलाओं की, छोटी बच्चियों की जो डाइटरी नीड्स हैं उनमें फर्क करता है, जिस पर हमको वर्क ऑन करने की जरूरत है कि सरकार या हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो इस सेमिनार में शामिल बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो अगर किसी हेल्थ प्रोफेशन में, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन में जाते हैं, कि सपोज वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनते हैं, तो आंगनबाड़ी स्तर पर जैसे सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं कि महिला गर्भवती होगी तो इसका इतना रुपया मिलेगा, 2 बच्चियां होंगी तो उनको हम इतना सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, या उनको डाइट पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनका इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी कई योजनाएं पूर्व में भी थी और अब फिर से नए सिरे से उनको और मजबूत किया जा रहा है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एज ए एडवाइजर, हेल्थ एडवाइजर, जूलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे भी हैं इसमें, स्टूडेंट्स हैं और भी डिपार्टमेंट्स के हैं, तो जरूरी नहीं डॉक्टर्स या डाइटिशियन ही, आप भी जब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर कोई पाठ्यक्रम अगर तय हो रहा है किसी भी स्तर पर, तो उसमें हम जो है इस पे वर्क करें कि जो डाइटरी पैटर्न है, जो मान्यताएं हैं प्रचलित, उसमें स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उसमें हम ये एक डाटा जरूर कलेक्ट करवाएं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कि हम जिस एरिया को देख रहे हैं वहां पर महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कितनी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, कितनी मालन्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, कितनी ऐसी हैं जिनको अप्रोच जो है हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए या हेल्थ सेंटर्स के लिए कितनी इजी है, कितना मनी उन पर खर्च होता है। कोई एक ऐसी स्टडी हम जरूर करवाएं एज ए स्कॉलर्स, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कि जो भी हमारे अंडर में फीमेल पॉपुलेशन आ रही है उसकी डाइटरी नीड्स, उसकी हेल्थ रिलेटेड नीड्स जो भी हैं उनको, इसमें 2 ही हैं, एक तो डाइट, दूसरा अप्रोच टू हेल्थ सेंटर्स एंड हेल्थ सर्विसेज। इसमें एक पॉइंट यह आता है हेल्थ सर्विसेज में कि जब हम आते हैं बात गर्भवती महिलाओं की, प्रेग्नेंट लेडीज की बात आती है, तो कई बार ये होता है कि उनके स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनको अगर एक बच्ची उनकी होगी, दूसरी बार वो गर्भवती हैं और फिर उसके बाद अगर उनको दोबारा भी बेटी होती, तो बहुत से तबके ऐसे हैं जहां पर उनकी पोस्ट पार्टम जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा नहीं किया जाता कि इसने लड़की पैदा कर दी है। अभी भी बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि इस तरह का घर परिवार में महिलाओं के साथ दुराव की स्थिति होती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और खराब होता है, वो एनीमिक होती हैं। तो लैंगिक समानता और हेल्थ की जब बात करते हैं, जब डॉक्टर शैली ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा एज ए पुलिस प्रोफेशनल मेरे लिए इस पे बात करना उचित होगा।
पर मुझे लगा कि जो हमारे दैनिक जीवन में हम जिन अनुभवों से गुजरे हैं, जिन मान्यताओं को हमने देखा है, अगर हम उस पर भी बात करते हैं तो ये हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न है जिस पर कि हमको बात करनी चाहिए। जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको जहां भी इस तरह की मान्यता या इस तरह की सोच को से आमना सामना हो तो उसको बदलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि महिलाएं भी, ये चाहे वो कमाने वर्किंग वुमेन्स हो चाहे नॉन वर्किंग हो, क्योंकि नॉन वर्किंग को हम क्या मानते हैं कि वो दे आर नॉट अर्निंग, दे आर वर्किंग बट दे आर नॉट अर्निंग। हमने वर्किंग को इसको मान लिया कि जो अर्न कर रहा है, जो पैसा ला रहा है, जबकि घर में जो महिलाएं रहती हैं वो घर की क्लीनिंग, वॉशिंग, बच्चों का देखरेख, एक बच्चे के लिए आप एक मेड रखिए, अगर घर की महिला बीमार है तो कितनी बड़ी समस्या होती है छोटे बच्चे की देखरेख में, कितना इनपुट चाहिए है, पर हम उसको एक बहुत हल्का काम मान लेते हैं। और वर्किंग का मतलब जो पैसा बाहर से लेकर के अर्न करके आ रहे हैं, जबकि उन्हीं के उस काम को अगर हम मोनेटाइज करने की कोशिश करें तो वी विल हैव टू पे हैंडसम अमाउंट फॉर ऑल दैट वर्क, जब हम उसको दूसरी तरह से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं का डाइटरी नीड्स है उन पर का बात होनी चाहिए। दूसरा, जो एक डिसीजन टू टेक, वो पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द कंसेप्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसमें महिलाओं का रोल जो है बहुत मिनिमाइज है। अगर कोई महिला गर्भवती है और वो नहीं चाहती है कि मैं इसको कैरी करूं, अभी मैं इसके लिए मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर तैयार नहीं हूं, तो क्या ये डिसीजन लेने के लिए परिवार में वो इतनी सक्षम है? क्या उसके ऊपर दबाव है कि नहीं उसको बच्चा पैदा करना है? ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसपे हम बहुत कम विचार करते हैं, बहुत कम सोचते हैं। इस विषय में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको देखें, वो जब अपनी खुद की मैरिड लाइफ कभी शुरू करते हैं या है उसमें, कि ये एक म्यूचुअल होना चाहिए, पर इसमें प्रायोरिटी जो है महिला की होना जरूरी है, क्योंकि ये उसके जीवन, उसके स्वास्थ्य से संबंधित इशू है कि आगे बच्चे करना, पहली बार उसको कैरी करना, कहीं पर किसी स्टेज पे लगता है कि ये उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है या वो नहीं कैरी कर सकती है, तो उसका टर्मिनेशन, ये कपल का म्यूचुअल तो है ही, पर उसमें भी डिसीजन के साथ महिला के डिसीजन को प्राथमिकता देना। क्या हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हैं? क्या परिवार में उनको इतना माहौल मिल रहा है, इतनी वो है, उनके निर्णय को सम्मान है कि उनसे कोई पूछता है कि हाँ ये प्रेगनेंसी जो है आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं या नहीं? इसी के साथ अगर वो दूसरा या तीसरा बच्चा चाहते हैं तो क्या वो निर्णय? लैंगिक समानता इस इशू पर आकर के एक बहुत बड़ा डिस्कशन का वो है, बिंदु है कि क्या स्वास्थ्य के स्तर पे, जहां पर महिला का पूरा स्वास्थ्य, पूरा जीवन जुड़ा हुआ है कि एक प्रेगनेंसी को कैरी करना या ना करना, कंसीव करना या ना करना, क्या हम ये बात पूरे मजबूती के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं उतनी सक्षम हैं? वो महिला चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई एक सिंपल सी हाउसवाइफ हो, किसी इंजीनियर की वाइफ, किसी डॉक्टर की वाइफ, किसी बिजनेसमैन की वाइफ, किसी पॉलिटिशियन की वाइफ, महिला किसी भी परिवार की हो, क्या वो इतनी सक्षम है कि वो अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य से जुड़े इतने बड़े निर्णय कि उसको मां बनना है या नहीं बनना है, किसी बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है, वो इस निर्णय को लेने के लिए उसका परिवार उसके साथ खड़ा है या नहीं? तीसरा, जब किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है उसको लेकर के देखना है, तो एक पहलू तो ये हो गया कि महिला के स्वास्थ्य का, उसकी डाइटरी नीड्स को लेकर के परिवार में क्या है कि परिवार के सभी सदस्यों के बराबर उसको एक सम्मान है कि हाँ वो भी। हमारे यहाँ आप इस चीज को देखिए कि एक अभी रिसेंटली में एक परिवार के संपर्क में आई, उच्चाधिकारी थे, ट्रेडिशनल मान्यताएं थी कि एक लंबे पारिवारिक जीवन के बाद, वैवाहिक जीवन के बाद भी ये घर की एक छोटी सी परंपरा है, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, पर कहीं ना कहीं वो पति पत्नी के संबंधों में फर्क ला रही है या उनके आगे बच्चों के सोच में फर्क लाती है कि बेटा है वो जो अधिकारी, वो अपने माता पिता के साथ ही भोजन करेगा, पर बहू जो है सास ससुर के साथ आकर के बैठ के भोजन नहीं करेगी। तो एक लंबा पीरियड निकल गया है, पति पत्नी साथ में भोजन ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जब बेटे को माता पिता के साथ ही तीनों टाइम खाना खाना है, नाश्ता करना है, और उसकी पत्नी जो उसकी अर्धांगिनी कही जा रही है, उसको कहीं एक
डिस्टेंस एक वो रख करके किस सोच के साथ है कि वो उस डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ सकती क्योंकि फादर इन लॉ बैठे हैं। तो एक लंबा पीरियड 25 साल का, ये मैं अपना एक निजी अनुभव है, कहीं किसी मेरे आई एनकाउंटर्ड दिस सिचुएशन कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो वहां पे बैठ के खाना नहीं खा सकती हूँ, मेरी तो पूरा जीवन जो है वैवाहिक इसी में चला गया कि जो है मैं उनके साथ खाना, ससुर के साथ बैठ नहीं सकती हूँ, पति को उनके साथ ही खाना है। अब जो बच्चा है वो किस सोच को, वो जेंडर इक्वालिटी को किस तरह से लेगा, स्वास्थ्य को किस तरह से लेगा, ये एक अलग इशू है। तो हमारे यहाँ ये देखिए, ये शुरू से रहा था कि अगर 2 गिलास दूध आ रहा है, 1 लीटर दूध है, 2 लड़के हैं, लड़की है, तो वो पहले बेटे को दिया जाता है कि आगे इसको में जरूरत है, ये बाहर जाके काम करता है, जबकि लड़की भी घर में, जहां गांव देहात में है, भैंस का भी कर रही है, गाय का भी कर रही है, सब कर रही है। पर घी, दूध, ये जो आवश्यकताएं हैं, उसमें भेदभाव माता पिता के, अपने घर के लोगों के द्वारा किया जाता है कि ये लड़की है, ये पुत्री है, इसको इतनी जरूरत नहीं है, लड़कों को ज्यादा जरूरत है। तो एक तो हो गया डाइटरी नीड्स। दूसरा हमारा आता है जब लैंगिक समानता और स्वास्थ्य पे, तो हमारा है कि गर्भधारण से लेकर के टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तक कि कोई महिला है वो कितनी है, तो इसके लिए एक इशू आता है। तीसरा है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जेंडर को डिसाइड करते हुए, तो वो हमारे यहाँ PNDT एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो उसमें महिला का कितना रोल है कि उसको पति ले जाता है कि नहीं 2 लड़कियां हो गई है, चेक कराना है, चुपचाप से कहीं चेक करा करके उसका टर्मिनेशन करा देना, भले ही उसकी जान पर बन जाए। तो एक इस इशू को हमको डील करना होगा, देखना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए टीचर्स, हम अपने बच्चों में क्या आगे इसको पास ऑन करते हैं, इसको जागरूक करते हैं। तीसरा एक इशू आता है कि महिला है, उसकी खुद की कोई स्वास्थ्य समस्या है और उसको हेल्थ ऑफिशियल के पास जाना है। ये बहुत ही विवादित विषय हो सकता है, एक बहुत क्वेश्चनेबल हो सकता है कि एक पूरी कम्युनिटी पर क्वेश्चन उठाने वाली बात है। पर ऐसा देखा गया है कि क्या कोई महिला हमारे यहाँ, जैसे मैं एज ए पुलिस ऑफिसर अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे 2 मित्र भी हैं जो डॉक्टर हैं, मेरे परिचित भी हैं जो डॉक्टर हैं, मुझे कोई समस्या होती है तो मेरे लिए ये इशू नहीं है कि मेरे साथ मेरे पिता जाएं, मेरे पति जाएं या मेरे भाई जाएं या कोई एक महिला जाए, तभी मैं अपनी हेल्थ को, अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन पूरा करूं, क्योंकि मेरा अपना कॉन्फिडेंस भी है कि मैं अपने को सुरक्षित कर सकती हूँ, मेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। पर एक सामान्य लड़की जिसको डॉक्टर को दिखाना है, अकेली है, दिक्कत है, और उसको अगर किसी हेल्थ ऑफिशियल को अप्रोच करना है, अगर महिला डॉक्टर है कोई इशू नहीं है महिला चिकित्सालय में जाकर के, मगर एक कोई सामान्य किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाती, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आए जिसमें ये हुआ कि लड़की रेडियोलॉजिस्ट के पास गई। अब ये बहुत ही वैसा विषय है कि लड़की आकर के कह रही है कि मैं उस पे गई थी अपना एक्सरे कराने या अपना अल्ट्रासाउंड कराने, वहां मेरे साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जिसमें ये डिसाइड करना कि एक्चुअली हुआ वो लड़की सेंसिटिव थी बहुत ज्यादा या एक्चुअल में हेल्थ ऑफिशियल के द्वारा उसके साथ गलत किया गया। इसी प्रकार से कई केसेस ऐसे आए जिसमें कि वार्ड बॉय ने या किसी ने जो है महिला रोगी के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार किया। तो वहां हम कैसे महिला सुरक्षा को, स्वास्थ्य की बात आ रही है ना कि लैंगिक समानता, एक आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बीमार होता है, जाता है डॉक्टर को दिखाता है, उसको कभी ये नहीं आता है यार मेरे साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट वाली चीज होगी, कोई इनसिक्योरिटी। पर किसी एक लेडी को अगर हेल्थ सर्विसेज के लिए अप्रोच करना है तो उसको पहला सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि हाउ टू सिक्योर माई सेल्फ, कि मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, फीमेल है कोई इशू नहीं है, पर अगर वहां वार्ड बॉय है या कोई और मेल है, एक संभावना उसको ये रहती है, तो फिर वो इंतजार करती है कि आज मेरे पति को समय मिले तो मैं जाऊं, आज मेरे भाई कोई साथ में हो। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो वर्किंग हैं, सिंगल हैं, अकेले रहती हैं, और जब उनको बीमारी की बात आती है, उनको कोई दोस्त साथ में नहीं मिल रही है और उतनी वो अवेयर भी नहीं है कि वो महिला चिकित्सालय जाएं, वहां पर कंसल्ट करें, किस तरह से करें। तो एक मुद्दा हमारा लैंगिक समानता और जो है स्वास्थ्य का है
कि हमारी बहुत सी महिलाएं केवल इसी संकोच में कि मैं किससे ये बात कहूं, कैसे जाऊं, और वो हेल्थ सर्विसेज को अप्रोच नहीं कर पाती हैं। तो हमको ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको लेकर के कैसा एक माहौल बनाएं स्वास्थ्य सेवाओं का, कि जिसमें कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची अपने को अपनी हेल्थ की केयर के लिए अगर उसको हेल्थ ऑफिशियल्स को अप्रोच करना है, तो क्या हम मेजर्स कर सकते हैं कि उनके लिए जो हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सभी में हम महिला की उपस्थिति सुनिश्चित करें। महिला रोगी कितनी आई हैं, क्या आई हैं, उनके लिए एनक्लोजर्स हैं कि नहीं है। तो ये एक अलग इशू होगा जिसको स्वास्थ्य ऑफिस जो अधिकारी हैं इस पर विचार करें कि हमारी जितनी महिला पॉपुलेशन है उसको जब हेल्थ सर्विसेज चाहिए हैं तो हम उन्हें कितना सेफ एंड सिक्योर माहौल दे रहे हैं कि वो अकेले भी आकर के। और जब यहाँ अकेले आने की बात आती है तो अब फिर मैं उसी पे आऊंगी, सशक्तिकरण पे, मैडम से जो पिछली बार बात हुई थी कि एक अवेयरनेस थ्रू आउट हर पाठ्यक्रम में चले, या हम लोग जैसे कहते हैं कि हर किसी को हम जूडो कराटे नहीं सिखाएंगे, हर किसी को कुंफू नहीं सिखाएंगे, पर एक बेसिक अवेयरनेस बच्चों में, महिलाओं में, लड़कियों में, इवन जो हमारे पुरुष हैं उनको भी। भाई आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? जेंडर हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, हमारे यहाँ बहुत है, विदेशों में भी ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होते हैं। एक सुनसान रास्ते पर एक पुरुष गया, वहां कोई बदमाश प्रकृति के लोग थे, उसके साथ क्या क्या अपराध हो सकते हैं? उससे उसका सामान छीना जा सकता है, सामान छीनने का विरोध करेगा, मारपीट हो सकती है, उसका मैक्सिमम क्या होगा? हत्या हो सकती है। वही अगर एक कोई महिला, वो अगर किसी सुनसान रास्ते से जा रही है तो उसके साथ क्या हो सकता है? उसकी ज्वेलरी छीनी जा सकती है, कपड़े छीने जा सकते, उसके पैसे छीने जा सकते हैं। एट द सेम टाइम उसके साथ दो और चीजें हो सकती हैं। अगर कोई बहुत बड़ा गिरोह का अपराधी है, गिरोह पाबंद टाइप के, जो कि ट्रैफिकिंग में है, उस महिला का किडनैप करके उसको कहीं ले जा करके, महिला, बच्ची जो भी है, बेच सकते हैं, उसके ऑर्गन बेच सकते हैं, उसको किसी ट्रैफिकिंग में लगा सकते हैं, और उसी समय उसके साथ यौन अपराध हो सकता है। तो यहाँ जेंडर आ गया, पुरुष महिला अपराध दोनों के साथ होगा, एक अपराध महिलाओं के साथ जेंडर से रिलेटेड हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति है, जब हम मेरा ये मानना है कि हर एक तो कानून का ये हो कि जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि सारे मुकदमों को जल्दी से जल्द निपटाया जाए। आपराधिक प्रकृति के जितने भी मामले हैं, मार पीट, लूट, छिनैती, हत्या, इनमें अगर हमारा कन्विक्शन रेट हम बढ़ा लेंगे तो उन अपराधों में कमी आएगी। अपराध तब भी बढ़ता है अगर बच्चे ने एक बार गलती की और उसको हमने समझाया, वो मान गया, ठीक है। दूसरी बार उसने गलती की, हमने अगर उसको पहली बार भी नहीं टोका, दूसरी बार भी उसके साथ कोई नहीं हुआ, तो वो तीसरी बार गलती करेगा। ऐसे ही अपराधी है, अगर किसी एक गांव के एक लड़के ने लड़की छेड़ी और हम अगर उसका कन्विक्शन नहीं हो पाया, जो लड़की गवाह थी, वादी थी, उसके घर वाले जो थे जिन्होंने गवाही दी और वादी बने, उनका प्रोटेक्शन प्लस उनकी गवाही हो, उन्हें बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ लालच के, और ये मैटर कन्विक्शन तक जाए, और वो लड़का अगर जेल पा जाता है 2 साल की भी, तो पूरे गांव में कोई दूसरा लड़का छेड़छाड़ या किसी भी तरह का महिलाओं के प्रति अपराध करने से पहले सोचेगा कि अगर मैंने ये गलती की तो लॉ ऑफ द लैंड जो है उसमें कानून ये कहता है मुझे सजा हो जाएगी और मेरा पूरा परिवार बर्बाद होगा। जब एक घर के लड़के ने गलती की और उसको सजा हो गई, तो आपराधिक जब वो होता है, उनके घर में किसी को भी शस्त्र का अगर लाइसेंस लेना है, कोई दिक्कत होती है, किसी तरह के उसमें जाना होगा, तो वो जो सूचना आएगी कि ये अपराध में इन्वॉल्व थे। तो कन्विक्शन रेट हमको बढ़ाना होगा कि जिससे कि ये अपराध कम हो। इसी तरह से हमारा ये, अगर एक इसका पहलू ये भी है कि जिस तरह का हमारा इतना बड़ा देश है, तो एक माहौल बनाना जो बन रहा है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि जो बड़े बड़े माफिया थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के जो क्राइम थे, उनमें लोगों ने, माफियाओं ने जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी की, उस पर बुलडोजर चलाने तक की कार्रवाई हुई है। आप सभी से परिचित हैं, पेपर्स में आता है। इसी तरह से जो हमारे महिलाओं से संबंधित लैंगिक अपराध जब होते हैं, चाहे वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, जिसमें जब ये आता है कि ये वाली क्लिनिक बंद हो गई और इसके जो मालिक थे जो कि गलत तरीके से लिंग निर्धारण करके वो करते थे, बता करके अबॉर्शन करवा देते थे, तो ये डॉक्टर जेल चले गए,
इस तरह के गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे। नॉर्थ लैंड डजंट अलाउ कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो कि भ्रूण जो है वो पल रहा है, वो महिला लड़की है या लड़का है। इस तरह की कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध अगर कठोर कार्रवाई होती है तो एक मैसेज जाता है जिससे ये अपराध रुकते हैं जो भ्रूण हत्या है। लैंगिक समानता में भ्रूण हत्या और स्वास्थ्य में ये भी आता है कि हम लड़की को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जो लैंगिक समानता और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो जो भ्रूण हत्या है वो एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें बहुत जागरूकता की जरूरत है, जिसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो अभी भी अपनी उस मानसिकता से नहीं निकले हैं जिसमें मानते हैं कि नहीं लड़का होगा तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी उतनी नहीं होगी, लड़की को शादी करके दहेज देना पड़ेगा। लड़की की सुरक्षा का इशू होता है, लड़के की सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। तो वी विल बी फ्री बर्ड्स कि भाई बच्चा हो गया, लड़का हो गया, पढ़ेगा लिखेगा, शादी करेगा। लड़की की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है। आजकल इतना बच्चों के साथ अपराध हो जाते हैं और लड़की है शादियों के बाहर चली जाएगी। तो हमको जहां पर ये है कि जब तक हम पूरा माहौल एक अपनी सिक्योरिटी को पूरी तरह से चाक चौबंद ना कर लें, जहां जिन देशों में है वहां पर भी अपराध है, तो इसमें हमको स्टेप बाय चलना है कि हमारे जो भी बच्चे हैं स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, उनमें एक अवेयरनेस। जैसे मैं अपना अनुभव बता सकती हूँ कि मेरी मदर वर्किंग थी, वो जब जाती थी और हम लोग का टाइम्स होता था कि मैच नहीं मिलता था स्कूल टाइमिंग्स, उनका टाइमिंग मेरा टाइमिंग अलग होता था। वो कहती थी घर में बेटा जब रहना, कोई आए तो विंडो से देखना कि कौन आया है, दरवाजा मत खोलना, और ऐसा शो करना कि जैसे कि घर में और बड़े लोग हैं कि अच्छा अभी उनको बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं। कितना भी कोई परिचित हो, अपने भाई अपने पिता के अलावा हर किसी पे विश्वास नहीं करना। कोई स्कूल में हॉस्टल में लेने आ जाए कि तुम्हारे पापा ने भेजा है तो तुम्हें नहीं जाना। तो जो सामान्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी है, अवेयरनेस है, वो बच्चों में हो, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। हमारे सारे स्टूडेंट्स अगर इस चीज को अपने परिवारों में, अपने दोस्तों के परिवारों में स्प्रेड करेंगे और आपस में डिस्कशन इस चीजों पे करेंगे सिक्योरिटी को लेकर के, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा कि हमारी अवेयरनेस, हम अवेयर चलें। रास्ते में चल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो महिला है तो उसके साथ दो तरह की घटना हो सकती है। उसका फोन भी छीन सकता है, उसकी चेन भी छीन सकती है, पर उसके साथ एक कोई गलत हरकत भी हो सकती है। तो एक अवेयर होकर के काम करना, हम फ्री माहौल दें, सुरक्षित माहौल बनाएं, पुलिस वाले हर जगह पे हों, हर जगह कैमरे हों। नॉट पॉसिबल, जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी पॉपुलेशन है, उसमें हर कदम पर पुलिस वाले नहीं हो सकते हैं, हर कदम पर कैमरे नहीं रखे जा सकते हैं लंबे क्योंकि वो रिसोर्स वाइज भी फिजिबल नहीं है। हमारे रिसोर्सेज इतने अलाउ नहीं करते हैं कि कदम कदम पे कैमरे हो। फिर अगर कैमरे में जिंदगी बिताएंगे तो वो भी सही नहीं है। उसके लिए एक माहौल होगा कि कन्विक्शन रेट हम बनाए, वो एक अलग इशू हो गया कि जो भी अपराध हो उसका मुकदमा लिखा जाए, उसमें कन्विक्शन बनाए, तो एक माहौल बने कि किसी भी तौर पर जो है अपराध बर्दाश्त नहीं है। अपराध हुआ तो उसमें अपराधियों को पकड़ के जेल भेजा जाएगा, सजा होगी। पर हम उसका प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में ये कर सकते हैं कि एक समय समय पे जो वर्कशॉप हो, हमारा जो पाठ्यक्रम हो, उसमें सामान्य सुरक्षा के नियम स्कूल के बच्चों से लेके बड़ों तक को बताएं। इसी में मुझे मौका मिला है तो मैं कहूंगी सुरक्षा में आप सुनसान रास्तों को अवॉइड करें। मेल के साथ छिनैती, लूट, मर्डर तक की घटना हो सकती है, तो महिला के साथ एक और जुड़ जाएगा, जेंडर रिलेटेड, वो जिसको लेके सामाजिक ट्राउमा तो है ही, पर एक मानसिक ट्राउमा महिला के साथ, स्त्री के साथ खुद होता है कि लोग चाहेंगे भी, हमारा समाज भी अगर उसको कर दे तब भी उसके लिए ट्राउमा रहेगा, तो वो करना जरूरी है। ऐसे ही जैसे आप कैब लेते हो, अब वर्किंग वुमेन्स हैं, पढ़ने लिखने के लिए निकल रही हैं, तो उनके लिए है कि अगर आप कैब लेके निकल रहे हो तो आप जब बैठे हैं तो उसमें चेक कर लें कि आपका जो चाइल्ड लॉक तो नहीं लगा है पीछे। आप बैठे हैं तो ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था इस तरह का सुरक्षा से रिलेटेड कि अगर महिलाएं हैं कैब ले रही हैं, कई बार कैब के कई प्रकरण आए जिसमें कैब ड्राइवर्स के द्वारा अपराध का प्रयास किया गया, वो सफल भी हो गए कि महिला से उन्होंने गलत हरकत भी की और उसका किडनैपिंग भी हो गई। तो इस तरह की जो सूचना है इसका प्रसारण हो और इस तरह का जो नॉलेज है वो शेयर हो कि अगर आप सिंपली कैब लेकर के जा रहे हैं, सुनसान रास्तों को अवॉइड करें। कैब लेकर के जा रहे हैं तो मालूम हुआ कि कैब में देखें कहीं चाइल्ड लॉक तो नहीं है, ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, आपके हाथ में अगर सिंपल स्प्रे भी है तो आपके पास एक अगर मफलर है या कोई एक रुमाल है वो लें। आपको लगता है कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है
तो आप उसको कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। और कई तरह के ऐसे मानक हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आप जूडो और ताइक्वांडो सीखें तभी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अवेयरनेस का लेवल जो आपका है कि उस पर ध्यान दें कि ड्राइवर अगर गलत दिशा में, आप गूगल मैप खुद भी लगा के चलें कि उसने जो रास्ता पकड़ा है वो सुनसान वाला तो नहीं, कि इसका कोई बेटर रास्ता है कि नहीं है। तो आजकल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, वो तो अवेयर हैं ही, और उनको चाहिए कि उनके घर में अगर कोई काम करने वाला आ रहा है व्यक्ति, उसको भी वो जागरूक करें। क्राइम हमारे आसपास कहीं भी होता है तो अल्टीमेटली देर सवेर उसका असर हम पर भी आता है। और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ सेक्स, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो जो हमसे जुड़े सभी लोग हों, चाहे वो हमारे ऑफिस में काम करने वाला पियून हो, चाहे हमारे घर में हेल्प करने वाली मेड हो, उन सभी को भी इस तरह अवेयर करें। दूसरा, कानून की जानकारी के साथ रिपोर्टिंग, कि अगर आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। रिपोर्टिंग ना होने की वजह से भी किसी लड़के ने, किसी व्यक्ति ने, किसी आपराधिक किस्म के व्यक्ति ने किसी महिला को छेड़ा और वो आपके पास आ रही है और कह रही है कि मेरे साथ ये छेड़छाड़ हुई, तो आप उसे डिसहार्टन ना करें। उसको कहें कि नहीं, चलिए हम आपके साथ हैं, हम इसकी रिपोर्ट कराएंगे और इस पर हम आपके साथ हैं, आप इसको दबे नहीं, क्योंकि आप दबेंगे तो आपके साथ अपराध और होगा। तो लैंगिक समानता और स्वास्थ्य में मेरा जितना सोच जाती है, उसमें जो भी हमें वर्क करना है वो यही करना है कि जो भी रिसर्च हो वो इस मुद्दे पर हो कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, वो जो सिटी की पॉपुलेशन है, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में जो पॉपुलेशन है, उसमें जो फीमेल पॉपुलेशन है उनका हेल्थ का स्टेटस क्या है, आर दे हेल्दी, कितनी तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनकी अप्रोच टू गुड फूड, गुड डाइट क्या है, प्लस जो गर्भधारण से रिलेटेड हमारे लॉ है कि भाई इसमें महिला का वो होगा, इस पर हमको बात करनी चाहिए कि किस तरह से जो है हम उनको मजबूत बनाएं, उन्हें अवेयर बनाएं कि वो किसी भी अनड्यू प्रेशर, क्योंकि फैमिली का माहौल और वो रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें ना चाहते हुए भी महिला जो है सकम कर जाती है प्रेशर को कि भाई ठीक है, ये तो परिवार है, ये पति है, सास ससुर है, इन्हीं के साथ रहना है, मैं कैसे अपोज करूं। तो हमको जो अवेयर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर किसी इस तरह की सिचुएशन के संपर्क में आते हैं तो हमको चाहिए कि हम उसमें साइलेंट स्पेक्टेटर ना बने रहें और अपना दखल जरूर दें कि भाई ये चीज गलत है। अगर आपकी बहू स्वस्थ नहीं है, आपकी बेटी स्वस्थ नहीं है, आपकी लड़की स्वस्थ नहीं, बहुत सी बार होता है कि लड़की केवल इसलिए कंसीव कर ले रही है कि शायद घर में जो मारपीट हो रही है ससुराल में बच्चा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी केसेस कि भाई जब डे 1 से ये लड़की को परेशान कर रहे थे तो फिर आपने ये बच्चा कैसे आगे बढ़ा, यानी कि प्रेम था पति पत्नी में इसलिए बच्चा हुआ। बोले बच्चा तो हमने इसलिए किया कि शायद बच्चा आने से इनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरह की जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की, महिला के स्वास्थ्य को सबसे दरकिनार कर दिया जाता है कि घर का वंश बढ़े, बच्चा हो, लड़की का काम ही यही है, ब्याह के इसीलिए लाए हैं। इस सोच को हम बदलेंगे और सभी की डाइटरी नीड्स हैं, जो भी काम कर रहा है उसके लिए जो कैलोरीज का एक मानक हमने बना रखा है, पर एक स्वस्थ होना सभी का अधिकार है। मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारा कानून है उसमें इसकी जो अंडरलाइंग फीलिंग है कि किसी भी उसमें स्वस्थ होना सभी का अधिकार है और वो स्वस्थ पाने के लिए सभी का हक है कि जो भी किसी एक की जरूरतों को पूरे करने के लिए किसी दूसरे की बेसिक जरूरतों को कट ना करें। कि लड़के को हमें हायर एजुकेशन दिलानी है इसलिए लड़की के खान पान में भी कटौती कर लो बेटी के, ये उचित नहीं है। ये पूर्व में होता रहा है, अभी भी कुछ तबकों में, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है। और दूसरा जो आपका गर्भधारण से संबंधित है, तीसरा अप्रोच टू हेल्थ ऑफिशियल्स है। इन तीनों ही बिंदुओं पर लैंगिक समानता और स्वास्थ्य, जिसे हम कहते हैं कि हम जो फैसिलिटी जो पुरुषों के लिए कोई क्यों नहीं हो रही है वेबिनार, कोई कॉन्फ्रेंस कि लैंगिक समानता में पुरुषों का क्या रोल है, स्वास्थ्य का क्या है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पुरुषों को जब जरूरत होती है, उनको शुरू से उनकी मदर उनके खाने का प्रॉपर ध्यान रखती है। बहुत कम घरों में आपको मिलेगा, या तो बराबरी मिलेगी या एक बायस मिलेगा महिला गर्ल चाइल्ड की तरफ
कि बेटे को ज्यादा अच्छा खान पान देना, सुविधाएं देना, बेटियों को कम देना। ऐसा वाइसी वर्सा नहीं है कि बेटी को ज्यादा दे बेटे को कम। वह उसी तरह से कंसेप्शन के मामले में है कि महिला का अधिकार, महिला की जो राय है कि क्या वो मदर बनना चाहती है, वो उसका क्या अपने जीवन को लेकर के डिसीजन है, उसको हम कैसे इंश्योर करवा पा रहे हैं। सामाजिक मानसिक जो सामाजिक हमारी मान्यताएं हैं उनको थोड़ा बदलते हुए, थोड़ा कानून का सहारा लेते हुए। तीसरा, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको महिलाओं की क्या अप्रोच है, क्या वो इतनी कॉन्फिडेंट है, हर एक महिला हमारे यहाँ, कि जब उसको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो वो निर्भीक हो करके और बिल्कुल ही अपनी स्वास्थ्य के लिए किसी भी हेल्थ ऑफिशियल को अप्रोच कर सकती है। ये एक विषय है जिस पर हम सभी को मिलकर के विचार करना है, मंथन करना और इसके प्रयास करने हैं, और हमारे अपने ऊपर ऑफिशियल्स और नीति नियंताओं को इस संबंध में जो है कार्य करना होगा। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे वेबिनार में उपस्थित जितने भी गुरुजन हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नया माइंड है, ब्राइट माइंड है, जो थिंकिंग माइंड है, वो इस पर अपने विचार रखेगा। मैंने केवल, मुझे लगता है इतना समय तो ज्यादा लिया, पर मैंने शायद एक मैं इसी में सफल हो पाई होंगी कि मैंने इस तरफ एक जो मेरी अपनी सोच है कि ये जो एक हमारे कंसर्न्स हैं उस पर जो बात होनी चाहिए उस पर आप लोग अच्छे सुझाव देंगे। एंड मैं यहीं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी कंसर्न्स थी कि जिस पे हमें वर्क करना चाहिए, लैंगिक समानता स्वास्थ्य में। इसके अलावा और भी पहलू हो सकते हैं जिस पर हमारे गुरुजन डालेंगे प्रकाश, या हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्या हो सकता है। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के ओपिनियंस का। थैंक यू। जय हिंद। Please unmute your mic. Ma'am, please unmute your mic. Yes, I will unmute it. Shelly ma'am, please unmute your mic. there is a technical glitch. अभी मैम दूसरे फोन से I think she is joining, so please wait for some time, please. Just a moment, please. Dr. Sir, in the meantime, when Shelly ji is joining, in the meantime, I think I can. Yes, absolutely, ma'am. It will be an honor. Let me just introduce, let me just introduce our guest, and I think she is an inspiration behind this program. I must say that Professor Madhurima Lal, our coordinator for the whole of the university for Mission Shakti program from the state government, is one of the most important inspirational figure behind all these deliberations the university is deliberating upon. So all departments are doing their level best for the Mission Shakti program, and as our distinguished guest Vandana ji just now, gave so many important qualitative intents on the matter of women empowerment and equality in the sense. I'll discuss all those deliberations at a certain point of time, but at this point of time, I think it is my foremost duty to invite the energy behind this initiative called Mission Shakti, Professor Madhurima Lal. Please, ma'am, welcome. Thank you so much, Dr. Chhachar. And वंदना जी से मेरी दूसरी मुलाकात है। वंदना मिश्रा जी, इससे पहले भी हम लोग एक डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में मुलाकात हो चुकी है, उसमें भी शैली जी ने, and I have been very fortunate to listen you second time, and I really wish to listen you again and again for the simple reason that the main theme, if you could just read out the छोटी सी लाइन जो मिशन शक्ति के नीचे आती है, initiative of government of UP for the reduction of crime against women, तो इसके ऊपर जो आप बोलती हैं, that is so relevant, and then आप खुद इसको साकार करती हैं because you are a woman in uniform. What else? How can we? अब हम कोई चीज रह नहीं जाती है साबित करने को, अगर आपका दोनों कॉम्बिनेशन है
तो मिशन शक्ति तो है ही ना, बट भाई प्रोटेक्शन करना है गर्ल्स का, और कौन कर रहा है? द सुप्रीम पावर तो आप ही है, बिकॉज यू आर इन द यूनिफॉर्म. सो वी आर सो proud of you, Vandana ma'am, and listening to you again. And of course, you have done a very an appropriate justification to the subject, because that is the women and the health and the gender equality. So throughout your lecture, I was noticing that it was both of it, the gender equality type, and then medically usko kaise connect kar pate. So you have done it wonderfully, and of course the girls must be very careful about everything when they are going to hospitals, and there can be